Hello, Bacha Party. What's up? How are you all? I hope you all are very well and good, great, happy. तो आज हम करने वाले, जैसे मैंने पहले बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो 1 मार्क क्वेश्चंस को लेकर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। 1 mark, 2 mark, 3 marks, 4 marks, and whatever, and application based questions, higher code, a higher order thinking. Okay, hot questions and reasoning questions, and some of the important topic areas to be covered. Okay, so these questions, let us, without wasting much more time, let's get started. So question number 1 says here is that name any two groups of microorganisms from which antibiotics could be extracted. तो इस तरीके के कुछ नेम करो microorganisms जिनसे कि मतलब हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हूँ। वो कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Why are we advised to take blended nourishing food when we are sick? क्यों बोला जाता है? क्योंकि we are advised to take blended nourishing, क्योंकि जो हमारे अंदर लॉस हुआ होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसे फुलफिल किया जा सके। If you all want to take some screenshots, you can also do that. You can also take the screenshots over here. Now next, what is the purpose of vaccination? The purpose of vaccination is what? What do you think? The purpose of vaccination is to induce the production of specific antibodies to confer immunity against subsequent infection. मतलब हमें इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं वैक्सीन ताकि स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट हमारी जो हमारी बॉडी है इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे और उस डिसीज को खत्म करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है। Now many vaccines from the public health program of childhood immunizations for preventing infectious diseases. Name any two such diseases, मतलब पहले ही जो लगा दी जाती हैं। ठीक है। Vaccine against measles and BCG vaccine against TB. We have also discussed this BCG vaccine against TB. Okay. Now, majority of children in many parts of India are already immune hepatitis A by the time they are 5 years old. Why? Because since beginning they are exposed to the virus through water. क्योंकि बचपन से ही उन्हें beginning से ही वो expose हो जाते हैं वायरस के थ्रू। कैसे? वाटर के थ्रू। ठीक है। Name any two diseases which are caused due to the unprotected sexual intercourse, AIDS and syphilis. 2 मार्क के क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में वो ये हैं, कुछ आप देख लीजिए। एक्यूट, क्रॉनिक, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए आप। वायरल फीवर, फ्लू, एलिफेंटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, चिकनपॉक्स, डायबिटीज एंड गोइटर। गोइटर में क्या होता है? हमारा जो नेक का रीजन होता है ये थोड़ा सा स्वेलन अप हो जाता है एंड तनी कोई ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। So that's why that the disease is named as goiter. Now question number 2, 2 मार्क के क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि नेम टू डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स से क्या हो सकते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्रैपेजोनियम, मलेरिया बाय प्लाज्मोडियम, कालाजार caused by leishmania. Now question number 3, which bacterium causes Peptic ulcers and who discovered the pathogen for the first time? किसने किया था? तो ये कौन सा पैथोजन, मतलब ये कौन सा बैक्टीरिया का, मतलब कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एंड जिन्होंने ये किया था वो थे हर्शल एंड वैरन। ये दोनों थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस बैक्टीरिया को। ठीक है। Now, what is an antibiotic? Give two example. Antibiotic is a chemical substance. We have already discussed about this, which secreted. This is also secreted by microorganisms like bacteria and fungi. We have already discussed in the first question. This was the first question for 1 mark questions, and which can kill the pathogens. उनकी characteristics अलग होती हैं, pathogens की अलग होती हैं. That's why they both are different, and hence these microorganisms can kill these disease-causing microorganisms. Example: penicillin and streptomycin. Now, name any 4 diseases transmitted through vectors. Malaria, dengue, kala azar, and plague are some diseases. List any 4 essential factors that must be taken care. This is care, sorry, not I. Taken care by an individual for keeping good health. कैसे हैं? बैलेंस डाइट रख के डिसीज फ्री इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, मतलब क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, मेंटल एंड सोशली स्टेबिलिटी होनी चाहिए और फिजिकली भी। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज हेल्दी। नाउ which amongst the two diseases, acute chronic, has adverse effect? किससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किसी पर्सन की हेल्थ को? और एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स भी देने हैं हमें। तो
क्रोनिक डिसीज लास्ट करते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए और हार्मफुल होते हैं एक्यूट डिसीज से भी ज़्यादा. फॉर एग्जांपल कफ एंड कोल्ड, वायरल फीवर, ये एक्यूट डिसीज के एग्जांपल्स हैं विच डू नॉट अफेक्ट अवर हेल्थ एंड बॉडी वेरी बैडली, और जल्दी विद इन अ वीक हम रिकवर भी कर पा जाते हैं. बट वाइल ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ अ क्रोनिक डिसीज इफेक्ट्स हेल्थ ड्रास्टिकली, मतलब बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, एंड हैज़ लॉन्ग टाइम इफेक्ट ऑन बॉडी, बहुत लंबे टाइम तक उनका उसका असर होता है हमारी बॉडी पे. तो यही है. What do signs and symptoms indicate if a person is suffering from any disease? क्या करते हैं signs and symptoms indicate? तो देखिए, signs and symptoms indicate presence of a particular disease, because when there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more symptoms of the body will change to the worst. मतलब अगर कोई भी sign होता है, कोई भी disease होता है, तो उसकी किसी भी functioning, हमारे किसी भी body part की functioning खराब हो सकती है, किसी भी किसी tissue की, किसी organ की हम वैल्यू देख चुके हैं, organs में से can tissue specific diseases, right? गिव 4 modes of transmission of AIDS. आंसर देख लेते हैं. ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, यहाँ पे 4 बोला गया लेकिन हमने 3 लिखे हैं, सॉरी फॉर दैट. फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू एन अनबॉर्न बेबी थ्रू लेबर, प्रेगनेंसी और डिलीवरी. नाउ थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग एंड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एज वेल. तो क्वेश्चन नंबर 10, what is the epidemic disease, क्या होता है, and which organ is affected in the if the person is suffering from jaundice. तो ये हमने पहले भी देखा था शायद कि लिवर इफेक्ट होता है जॉन्डिस से, है ना. नाउ नेक्स्ट इज एन पेंडेमिक इज अ रैपिड एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ डिसीज दैट affects many individuals simultaneously in a particular area. It is generally an infectious disease. Question number 10, how can we prevent waterborne diseases and vector-borne infections? इन्फेक्शंस कह लो या फिर डिसीजेस कह लो, कुछ भी कह लो. तो वाटर बोर्न इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सेफ ड्रिंकिंग वाटर करेंगे तो वो भी नहीं होंगे हमें. और वेक्टर बोर्न कैसे हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रख के, ताकि कोई भी मॉस्किटो या कोई भी ब्रीड ना कर सके वहां पे. ठीक है. नाउ नेम द पैथोजेंस विच कैन कॉज एक्ने एंड स्लीपिंग सिकनेस. एक्ने किससे होता है, स्टेफिलोकी, एंड स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रैपेजोमा. ओके, नाउ नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज जापानीज एलिफेंटिसिस, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड. तो जापान एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय वायरस which refers to human body through, कैसे एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के थ्रू, मॉस्किटो बाइट. ठीक है. और कौन सी होती है वो, फीमेल होती है एक, है ना, फीमेल, मैं भी भूल गई. इट्स ओके. By keeping the surrounding, अभी हम आगे पढ़ेंगे. By keeping the surrounding clean and taking proper measures against the, मैंने देखो पहले हम, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 डिसीजेस हमने देखे थे कि मलेरिया किससे होता है और डेंगू किससे होता है ना. और जापानीज एलिफेंटिसिस के भी शायद हमने देखा था कि वो किससे होता है. ये ब्रेन फीवर होता है ये. ठीक है, एलिफेंटिसिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस. ओके. सो मेजर्स अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, इट कैन बी प्रिवेंटेड. अगर हम बचा के रखेंगे अपने आप को मॉस्किटो बाइट के अगेंस्ट तो हम बच सकते हैं उससे भी. तो एंटीबायोटिक क्या होता है, इज अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक पेनिसिलिन जो है वो है एक एग्जांपल. नाउ स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ. किस तरीके की, मतलब कैसे हो सकते हैं, 2 नहीं हमने 3 किए हैं. हेल्थ इज अ स्टेट, पहले तो हमने हेल्थ की यहाँ पे डेफिनेशन दी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. हेल्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन दीज 4 फैक्टर्स. ठीक है, 2 की जगह 4 हैं यहाँ पे. ठीक है. Better social environment, better public cleanliness, good economic conditions, and social equality and harmony. This all we have discussed already in our notes, right? Now, state any 2 conditions essential for being disease free. तो 2 से जगह 3 कर दिए हमने. तो eating good food means balanced diet लेनी चाहिए full. ठीक है. Maintaining personal and public hygiene in clean surroundings, ये अभी ऊपर भी देख के आए हैं हम. सेकंड क्वेश्चन में भी वही पूछ लिया. Okay. Why are we normally advised to take blend and nourishing food? This already we have discussed again and again. Why this is coming, huh? Okay, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और given है. In such situation, such food is required which is easy to digest. ये मतलब अगर ये पतला होता है तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है. That contains adequate nutrients for the speedy recovery, और बहुत जल्दी रिकवरी होने के लिए उसमें बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. That blend and रिक्वायर ड्यूरिंग द सिकनेस, जो फुलफिल करने के लिए जो हमारे लैक हो जाती है बॉडी में, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो उसमें प्रोवाइड होते हैं, मतलब हमें उसमें होते हैं. नाउ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, when you are taking examinations, when you have traveled by bus or train for 2 days, or when your friend is suffering from measles. Why?
अब आप लोग बताइए, आई एम मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक व्हेन आई एम नियर टू माय फ्रेंड हु इज सफरिंग फ्रॉम मीसल्स बिकॉज दिस इज वेरी स्प्रेड, मतलब ये acute डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज है caused by a virus. This disease is characterized by fever and a blotchy rash, and this means that one should stay away from a person suffering from measles. ठीक है, क्योंकि बस में मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा आप मीसल्स से अपने फ्रेंड के साथ अगर रहते हो और उसको मीसल्स है तो आप तब ज़्यादा इफेक्ट कर पाओगे, ठीक है, जल्दी हो जाओगे, इसीलिए. नाउ 3 मार्क क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट chronic diseases. तो acute disease lasts for short period of time, it is caused randomly, it does not affect the body very harmfully. जो क्रोनिक डिसीज होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और वो लंबा टाइम लेते हैं, हमारी बॉडी में लंबा स्टे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स भी गिवन है यहाँ पे. कफ, डायसेंट्री मतलब कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, और यहाँ पे लाइक इन्फेंटिसिस, हार्ट डिसीज एंड ट्यूबरक्लोसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज the signs and symptoms of the disease will depend on the tissue or the organ which the microbe targets justify the statement. अब क्या है? Every microorganism shows its effect on any particular टिश्यू, किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू पे शो करता है, एंटरिंग इनटू बॉडी, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ग्लैंड पे, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे, ठीक है. सो दस देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन, जिस पे भी इफेक्ट करता है उसका फंक्शन चेंज होता है या फिर स्ट्रक्चर चेंज होता है, राइट. फॉर एग्जांपल, इफ द लंग्स आर टारगेटेड, so the symptoms will be cough and breath illnesses. If the liver is targeted, there will be jaundice. This is called organ specific manifestations. ठीक है. Now question number third, why is a person suffering from AIDS cannot fight even small infections? Because उसको HIV हो चुका है, बहुत सारे डिसीज उसके साथ अंदर हैं उसकी बॉडी में, तो वो स्मॉल से स्मॉल डिसीज को भी नहीं कर पाएगा, ठीक है. देखो मैंने पहले बता दिया आपको, यहाँ पे पढ़ लेना. इन अ स्लम एरिया many people are suffering from malaria. Mention any two unhygienic conditions that must be prevailing in that locality, and why female Anopheles mosquito feeds the human blood. Very, very important question which can be asked in your question paper. तो देखो, stagnant water in the surrounding and accumulation of garbage. Because female Anopheles mosquito require large amount of proteins to lay their eggs, जो कि हमें उन्हें हमारी बॉडी से मिलता है, ठीक है. सो व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन, राइट द सिम्टम्स ऑफ दिस इन द ह्यूमन बॉडी. क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो देखते हैं चलिए. इन ह्यूमन बॉडी व्हेन देयर इज एन इन्फेक्शन, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स many cells to the affected tissue to kill this disease causing microbe, and this recruitment process is known as inflammation. Symptoms क्या हैं? Swelling and pain, fever, ये कुछ signs and indications होते हैं जो हमारी immunity system देती है, इसी को बोलते हैं हम inflammation, जो हमें तब मिलते हैं जब हम किसी disease से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है. लाइक अगर आपको मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो आपको वहाँ पे रैशेज हो जाएंगे, आपको खुजा लगेगी, आई मीन आपको उस पे आपको बहुत ही इची सा फील होगा, तो आप वहाँ पे जब इचिंग करोगे तब आपको रेडनेस हो जाएगी. सो दैट ऑल इज नोन एज व्हाट? इन्फ्लेमेशन. फीवर के बारे में हम आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें फीवर होता है तो ये हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, अगर ज़्यादा हाई फीवर नहीं होता है. अगर ज़्यादा हाई फीवर होता है तो दैट टाइम वी मस्ट टेक दैट, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक ऐसा ग्लैंड होता है जो फीवर हमारी बॉडी की टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ताकि वो जो अगेंस्ट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो पैथोजन है जो हमारे अंदर है, उससे फाइट करने के लिए, उसको वीक करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपीज ना बना पाए, ठीक है. और हमारा इम्यून सिस्टम यही इंडिकेशन देता है हमारे ब्रेन को, जिससे कि हमारा फीवर हाई हो जाता है. है ना. लाइक अभी नॉर्मल चल रहा है, अचानक से हाई हो गया, ऐसे. सो व्हाट आर द वेरियस ways to prevent these diseases and what is immunization? So we can prevent disease in two ways, general ways, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस हो चुके हैं ये. बाय प्रिवेंटिंग एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंड बाय प्रोवाइडिंग सेफ वाटर, बाय बैलेंस डाइट. स्पेसिफिक वेज क्या? बाय इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन क्या होती है? दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यून पावर टू फाइट. इम्यूनाइजेशन मतलब जब कोई इंसर्ट करता है वैक्सीन को हमारी बॉडी में, उसी को बोलते हैं हम इम्यूनाइजेशन. तो दिस इज वेरी सिंपल. इम्यूनाइजेशन बेसिकली एक दूसरा नाम है वैक्सीनेशन का, ठीक है. So state any two principles of treatment of a disease. वो क्या है? There are two ways to treat an infectious disease. क्या ways हैं वो? By reducing the effect of the disease and by symptomatic treatment, ठीक है, जिस तरीके के symptoms है उसकी treatment दे दें.
and by taking a bed rest, ठीक है, by killing the microorganisms that affect the infectious agents, that act as infectious agents. So list any 3 reasons. Now you can take screenshots of these. So list any 3. Let's first of all read this. So what is this? List any 3 reasons why you should think that you are sick and डॉक्टर, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमें सिम्टम्स होते हैं हमें ज़रूर जाना चाहिए, हैवी सिम्टम्स हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में या पेन वगैरह होता है दैट टाइम. Now, in which of the following case do you think the long-term effects? So, if you get jaundice, if you get lice, if you get acne, why? तो high temperature ये पढ़ लेना बच्चा. सबके अपने अलग अलग ये होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने ऑलरेडी नोट्स में कवर कर चुके हैं, इस चीज़ को इतना पढ़ने की ज़रूरी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी how many times did you fall ill in once a year, ये भी पढ़ लीजिएगा once again. ठीक है, I'm telling you. ये भी अभी आप लोग इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो इफ़ यू वांट बच्चा पार्टी. ओके, सो यहाँ पे 5 मार्क के क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो. मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देती हूँ आप लोग के लिए, एंड यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट्स फॉर देम. ओके, नाउ I will discuss all these later. Now comes here is application based questions, जिसमें आपको कुछ applications करनी होंगी इसमें, तो आप इनके भी screenshots ले लीजिए. Okay, and I'm surely बच्चा पार्टी, if आप जो भी देख रहा है viewers, कोई भी देख रहा हो, ठीक है, these questions which I'm providing you right now will definitely 101% I'm sure कि आपके एग्जाम में या तो हो गए, अगर आपके एग्जाम तो आए होंगे, या फिर अगर होने वाले हैं तो पक्का लिख के ले लो कि कोई सा ना कोई सा, मतलब इसमें से 90% या 80% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतना ही. अगर आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ गया हो तो वी विल डेफिनेटली टेक अप द नेक्स्ट सेशन. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से जो भी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो हो रही है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बोलते हैं, हॉट क्वेश्चन जो आप बचपन में भी करे होंगे आपने साइंस में. ठीक है, तो ये सब देख लीजिए. इम्यून रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होता है बेसिकली. इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ के आए हैं. ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से. पढ़ लीजिएगा इन्हें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए. रीजनिंग क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए. बच्चा पार्टी में बता रही हूँ, एक बार आपने इन्हें पढ़ लिया और मेरे जो वीडियोस मैंने नोट्स बनवाए हैं, अगर आपने उन्हें अच्छे से एक बार भी रिव्यू कर लिया, उन्हें भी देख लिया, तो मैं बता रही हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लो तो. बेसिकली बायो इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, अगर आप उसे ध्यान से और मज़े से पढ़ोगे ना, आपको बहुत नॉलेजेबल सब्जेक्ट है बायो. मैं सिर्फ बायो को ही नहीं कह रही, मैथ्स भी है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. बायो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ हियर वी हैव कवर्ड दिस. इफ अब देखिए बच्चों, मैं 5 मार्क क्वेश्चन से कल को डिस्कस करूंगी. सो आज के वीडियो में मैंने आपको सारे ये दे दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. डिस्कस हम इन्हें कल कर लेंगे. ठीक है, तो डोंट यू पीपल वरी, इनको हम कल डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग वरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इन सब के स्क्रीनशॉट्स आपने भी आई होप कि ले ही लिए होंगे. तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस ऑल. कल फिर हम कहाँ से डिस्कस करने वाले हैं बताइए. कल हम फिर डिस्कस करेंगे 5 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं अगर मैं डिस्कस करूं तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस दिस ऑल विद यू ऑल पीपल. एंड अदरवाइज जो मैंने आपको ये सब दिखाया है इनका आप स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, आप लोग के लिए बहुत हेल्प करेगा, मैं बता रही हूँ. तो प्लीज डू दैट एंड हैप्पी लर्निंग. बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड व्हाट ऑल आई शुड आई से कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें. और देख लिया ना आपने कितने सारे डिसीज होते हैं, तो अपने आपको बचा के रखें और हैंड वॉश करके ही खाएं, जो भी करें जितना आप प्रिवेंट कर सकते हो डिसीज को, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है,
जितना आप प्रिवेंट करोगे उतने ही बेटर रहोगे। आप अगर क्योर करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पेन होगा तब ज्यादा, जब भी आप ठीक करोगे। अगर आप पहले से उस सबको प्रिवेंट कर दोगे, मतलब पहले से उससे अपने आप को बचा लोगे, तो फिर ना आपको वो प्रॉब्लम्स होंगी, ना आपको वो फेज को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम को। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू सून बच्चा पार्टी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो करूँ explanation का ये सब, so do comment me in the comment section, and if you are not wanting to watch this, and if you all can understand yourself, do comment me again. So see you soon, bye bye. हाँ, एक ने बोला था मेरे को कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कराइए, so I'll be soon coming up with this, with that chapters video. So if you all liked my channel, so please बच्चा पार्टी में आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, please subscribe it and like the videos if you all like. अगर आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक करना, नहीं लगती तो कोई बात नहीं. So thank you and bye bye.